Hi Ji. So last time we discussed this bit masking operations, and this was a way to write or read a certain bit to modify a single bit of a register. Okay, so I hope there's no issue with that. And then we also discussed the structure of the AVRC code, and just like any C code that we would write for a PC, except that we are dealing with a chip this time, with a with a microcontroller which has a very limited set of resources. So those are the extra stuff. And on a PC, we don't have this loop which runs for infinite time. We never do that on a personal computer because we don't want one computer to occupy the microprocessor all the time. Because there have to be a lot of programs running in parallel. But on microcontroller, this is not the case. So we just put this while loop and we do a specific thing forever. Okay. So this is another test program. What this program does is it checks a button status, and depending on the status of the button is released or pressed, think of this as a push button. Yeah. And it looks like some, in fact, yeah, it could be push button. In push button, there is a spring, push button is spring loaded. So when you press it, the spring has to be pressed. But if you leave it, if you don't push on it, it will go back to the open position or the previous position. So we can call it a switch or we can call it a push button, but the basic circuit looks like this. So what happens is we have this 5 volt coming from some external source. It could be from the microcontroller also because the 8 mega 328 chip. In fact, the Arduino board has this 5 volt pins. And then we have a current limiting resistor normally in the range of like 100K or 200K. Um, and then we have this switch. And let's say you have put this NOT gate in there. What this NOT gate does is it inverts the logic. So imagine a current flow is through this way, but if the switch is open, so that current will go into the pin, okay? And that will be regarded as, in fact, there is no drop here, okay? So that will be regarded as a 5 volt or logic one, okay? And the moment you switch this, close this switch, you're connected to the ground. So 0 volts are there, which will be regarded as mm, yeah, which will be regarded as one. So in fact, why did I put this NOT gate here? In order to make it compatible with the code. We'll read the code next, but first understand the circuit. So I repeat, if the switch is in open position, this is the path that current will take. It will go flow into the pin. Okay, we are inputting something onto a pin, pin B, port B, pin number 7, the last pin. And that, in fact, till here is 5 volt, okay? And then after that, we are inverting it, so we're reading it as 0. So when the switch is in open position, we're getting 0 here. When the switch is in closed position, the current will this path will be established. The current will prefer to go that way, and then we have 0 volt here, and 0 when inverted, it gives us 1 volt here. So the closing of the button is giving us 1, and the opening is giving us 0. So now if you look at the program, okay, now the thing is you have to read this specific bit of port B, the last bit. So we're gonna look at the program now. So first of all, pin B has nothing. We don't need to configure it as input because all ports by default are configured as input. But if you do that, in fact, you have DDRB equal to 0, 0, there's no harm in doing it. You can do it. But it's already configured as input, so we don't have to do that. Uh, Second thing is we're initializing the input port, the data where the register in memory where the
input data is coming, we are making sure that it has nothing already, and it has been initialized to 0. And then what we do here is we are we have connected an LED to the fifth pin of port B. So in order for that LED to be driven by the microcontroller to be turned on or off, we need to configure this specific port as pin as output, with this specific pin as output. In order to do that, you do bit masking. So you shift 1 by 5. This is a constant which has been defined inside this header library. So either you type 5 here or you just write DDRB5. Okay, it's a constant. I repeat, it's a constant. So you are shifting 1 by 5 units to the left, and the point is to have 1 in that specific position, because we're going to OR whatever is the content, we're going to OR it with that. So we're going to set the fifth bit to 1 so that that specific pin of port B is configured as output. Okay, so that's what this line is for. And then we go into the infinite loop. And then the next is to check the status of the button. So we know the button has been connected to port B, pin number 7. Okay, so it's port B, pin number 7. So what we are doing here is we are trying to see that if the status has been changed or not. So I'm going to explain this in a little detail. So so imagine that we have okay, all right. So imagine that we have already pin B has been initialized to 0 in hex, or we can do this as in binary. Okay, and then what we are doing, and we're ending it with 1 shifted by pin B, pin B7. Okay, this is the same as 1 shifted by pin B7. So let me do this. So it will look like this. We have shifted 1 by shifted it left 8 times. Okay, so that's why it went into the very last position. The reason being that the LED has been connected to pin number 7. What happens when you end it? When you end it, so the result will be 0 here, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Okay, anything ended with 0 is 0. So the condition will say that yes, it is equal to, well, do you see the not here? The not? Yeah, I've cut it, but anyway, the exclamation mark is there. So if I do a not mean invert this, okay? So now the result will be 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. So this is true. Anything other than 0 is true. If you do this, if this, okay, if you do this, then we know that this condition is true. Anything other than 0 is true. So that means you go into the inside the loop. Okay, that's what we were checking, whether the button has been pressed or not. Okay, so the question is, okay, let me complete. So what you do now is you do port B, and you end it with, can anybody tell me what they're doing here? We did this. Is it for setting a certain bit or is it for resetting a certain bit? This code. We last time did this.
Sir, it is to make it 0 again. Exactly. Not again. In fact, we are turning off the LED. Good. Yes, So sir. port B will have what? That specific pin 5 has been set to 0. So which means turn off LED. Why? Because the button is what? The button is sending this 0 0. And when will it 0? When will all be 0? We're not interested in the entire port. We're just interested in the bit number 7, this specific one, because our push button is connected to bit number 7. And I told you, if the button is not pushed, you are getting 0 here. You're getting 0. Why? Because that 5 volt appear here, and you invert it. So invert has been taken as 0. So that's why you don't want to turn on the LED, because the push hasn't been uh, port pin B of if off. Pin B of port B if off. That means make pin B of port B low if the switch, yeah, is off. Okay, good. Is off. Okay. And now the opposite, let's look at the situation when, so I write there as button or switch not pressed. Now what happens if you push the button? So let me see that here. Let me show that here. Uh, so if the button is pushed, okay, pressed. So what you will get, you will in this specific position, you'll get 1. Okay. And I don't, in order to not highlight the rest of the thing, I can just put, I don't care what is in there. Although I have initialized it to 0, but I don't care what is in there. All I care is this button has been made 1 because a button has been pushed. Okay. So in order to make it consistent, I will just leave it 0 0 0 and 0 0 0. Now we again do the same thing. We do AND. This time ANDing gives us 1 here, because 1 and 1 uh, is 1. And you not them here. You invert them here. So when you invert them, so what you get is you, wait a second. 0 1 1. 0 1 1 1. अच्छा. ये तो अभी भी ट्रू आ रहा है, ये सारा 0 होना चाहिए था तो सर जी। सर ये बाकी जो 0 0 0 है ना सर, इसको हम क्यों कंसिडर करते हैं? एक पिन को डील कर लेना सर उससे, अच्छा लेट्स कि नहीं सी, कर सकते ऐसा? कर सकते हैं इफ पिन बी ऐसा एंड विद दिस। हाँ, हम एक पिन को भी एंड कर सकते हैं। तो पिन बी इज, इन्होंने पूरे रजिस्टर को किया है। सो लेट मी सी, अगर पूरे रजिस्टर को करेंगे तो अगेन इट विल गिव अस non-zero. So again this is true, and this condition is ये, अच्छा सर आपने 1 शिफ्ट भी किया था? नहीं किया था। नहीं सर, आपने 1 शिफ्ट नहीं किया। 1 तो शिफ्ट किया हुआ है, नहीं देखे, नहीं किया सर वो प्रीवियस कंडीशन में था। नहीं, तो अभी भी तो 1 को 7 बार शिफ्ट करना है ना, ठीक है, तो इट विल कम हियर। Yes, sir. हाँ, सो लेट्स सी, और फिर हमने उनको एंड किया तो ये हमारे पास ये आया। फिर हमने उसको इन्वर्ट किया तो दिस इज स्टिल कंसिडर्ड एज ट्रू। इसको फॉल्स आना चाहिए, ये सारे 0 होने चाहिए। तो हम किधर गलती कर रहे हैं? राइट साइड पे देखते हैं। एलईडी इज कनेक्टेड टू 5th पिन ऑफ पोर्ट बी, स्विच इज कनेक्टेड टू 7th पिन ऑफ पोर्ट बी। नॉट एक्सप्रेशन मीन्स expression equal 0.
अच्छा, एक्सप्रेशन इक्वल इक्वल 0। अच्छा, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये नॉट हम ना डालें, मैंने उधर लेक्चर में भी हटाया है ना, ठीक है। अगर नॉट ना डालें तो फिर आपके पास इधर क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0। तो ये क्या आएगा, ये ट्रू आएगा, हाँ सॉरी ये फॉल्स आएगा। इफ फॉल्स देन टर्न ऑफ द एलईडी, ठीक है। सो सर अगर इसको दोबारा शिफ्ट करें और पिन को इन्वर्ट कर दें फिर तो लेट्स डू दिस। मैंने एक्सक्लेमेशन हटा दिया ना, देखिए मैंने उधर भी हटा दिया है, ये किसी रीज़न से किया होगा, ठीक है। तो अगर एक्सक्लेमेशन नहीं है तो इफ पिन हैज़ ऑल zeros because the button is not pressed and we end it with a shifted 7, sorry shifted 1 shifted by 7 तो हमारे पास आएगा 0, 0 मीन फॉल्स। तो जब फॉल्स हो तो हम क्या करेंगे, हम जब फॉल्स हो तो हम इधर आएंगे, तो हम तो इधर एलईडी ऑन कर रहे हैं, ठीक है। हम एलईडी ऑन कर रहे हैं, ये हमने इन्वर्ट कर दिया लॉजिक को, ठीक है। और इधर क्या होगा सर जी, सर हाँ ये जी, जो दूसरे वाले इसको जहाँ पर हमने ना सर ये जो 1 0 0 0 0 आया हुआ है ना सर, हाँ जी, उधर लिखा हुआ है ना सर इधर की एक्सप्रेशन कंपेयर विद 0 सर। हाँ हाँ, तो 1 0 0 0 0 0 को अगर हम 0 0 0 से कंपेयर कर ले तो वो फॉल्स जाएगा ना सर। कंपेयर करेंगे, नॉट की जगह अगर हम नॉट एक्सप्रेशन मींस एक्सप्रेशन कंपेयर विद 0 ना सर, हाँ तो 1 इक्वल इक्वल 0 इज फॉल्स ना सर, अच्छा। फॉल्स हो गया ना सर। तो इसका मतलब है कि अगर इधर नॉट होता इधर सर इधर इधर नुदिल तबसु इधर सर इधर किधर, इधर वो राइट से, अच्छा सॉरी एक मिनट, ये आप कहते हैं कि ठीक है, यस सर। if 1 0 0 0 0 कंपेयर विद 0 0 0 0 तो रिजल्ट इसका फॉल्स आ जाएगा ना सर अच्छा। कि नहीं। लेट्स अगर ये आया और इसको हमने नॉट किया तो ये आया, ठीक है। तो कंपेयर्ड ये ज़ीरो नहीं है ना, देखें एनीथिंग अदर देन ज़ीरो इज कंसिडर्ड एज ट्रू, नो कि नहीं, आप इसको कंपेयर करें। यस सर, लेकिन सर उधर नॉट को एक्सप्लेन किया हुआ ना सर, ऊपर स्लाइड में जो नॉट को एक्सप्लेन किया हुआ था, हाँ जी, ये वाला सर एक्सप्रेशन ठीक है कंपेयर विद 0। यार, मैं इसका अपना एक वर्जन लिखता हूँ, देखें मैं, इट विल नॉट टेक दैट टाइम। लैंग्वेज सी, ठीक है। ऊपर इंक्लूड्स वगैरह मैं खैर हटा देता हूँ, इंट मैन और पेन बी DDRB 1 shifted 5 times or while 1, ठीक है। and then what I do here is if pin B this 1 shifted pin B7 which means 7 लिख दें, तो क्या होगा, port B 1 shifted 5 times, 1 shifted 5 times, else port B एंड करें इसको नॉट के साथ 1 shifted 5 times। अब देखें इसकी लॉजिक, ये
ब्रैकेट वैकेट पूरे कर दें अगर आप इसको रन करना चाहें। अब क्या होगा, अगर ये पोर्ट बी मैंने इसके साथ एंड किया और पिन बी में है 0, ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो जब आप उसको शिफ्टेड 1 के साथ एंड करेंगे, नॉट आप कर नहीं रहे, तो आपके पास आ गया 0 0 0 0 0 0 and it is considered as false. When it is considered as false, तो आप क्या कर रहे हैं, you are clearing the LED, you are turn off it. ठीक है। अब वो दूसरे को देखें, ठीक है। Now if the button has been pressed and then you end करें shifted उसके साथ और इसका आप लें end, तो condition is true, तो turn on LED। तो इधर मैं लिख दूंगा turn on LED। अब मसला है कोई? मसला है कि नहीं? सर दोनों सर को इसमें जरा ये नॉट compare- तो टर्न ऑफ के साथ लगा हुआ है। जी, क्वेश्चन? सर एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये टर्न ऑफ के साथ हमने यूज किया है, हम यूज यहाँ पे टर्न ऑन के साथ कर रहे हैं। मैंने हटा ही दिया सिरे से, मैंने अपना बस एक्सक्लेमेशन इसमें कहीं नहीं है। अच्छा सॉरी, एक्सक्लेमेशन तो है, चलें एक्सक्लेमेशन हटा दिया, तो अब करें, ये ट्रू है कि नहीं? ट्रू है कि नहीं? बिल्कुल सर है। ट्रू है ना? True है सर। एनीथिंग नॉन जीरो इज ट्रू। तो हम इसी कोड को, प्रोटियस मेरे पास आज भी इंस्टॉल नहीं है, वो जो हमजा ने कहा था वो मुझे एरर्स दे रहा है, वो गेट इनटू पीसीए के कौन सा वेबसाइट है, तो हमजा जुर्माना होगा। लेकिन इफ समवन हैज प्रोटियस, तो ये कोड में ये मैं उधर पेस्ट करता हूँ। खैर अभी सर्किट बनाने में आपको टाइम लगेगा, सर्किट है बड़ा सिंपल, वैसे सिर्फ एक एलईडी है राइट पे और इधर एक स्विच लगाना है, ठीक है। तो वैसे मैंने कहा था आज सारा लेक्चर प्रोटियस पे होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं दिखाता हूँ मेरा प्रोटियस क्या करता है। ये एरर देता है। अच्छा वो तो खैर मैंने हटा दिया, लेकिन इसका सेटअप मेरे पास है डाउनलोड्स में, प्रोटियस ये। तो हमजा माइट एक्सप्लेन कि भाई ये एरर सिर्फ मेरे पास आता है कि आपके पास भी आता है। हमजा आर यू देयर? हमजा निश्ता, हमजा रहमान, which section is this? ये बैठा हुआ है ना, बोल क्यों नहीं रहा? हमजा आर यू देयर? तो सर आवाज आ रही? माइक खराब है। हेलो हमजा? जी आवाज आ रही? हाँ जी आवाज आ रही है। दैट इज एरर वर्क कीता वेदा दे वेबसाइट ने भी डाउनलोड करे से शोदा इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया था आपने? इंस्टॉल करते वक्त कि नहीं रन करते वक्त? इंस्टॉल करने के बाद? मैं करता हूँ अभी, मैं मुझे लगता है मैंने किया, बट लेट मी कंफर्म, क्योंकि इस पे 2 मिनट लगेंगे। तो द बेस्ट वे टू चेक अ प्रोग्राम इज उसको प्रोटियस में करें, ये असाइनमेंट में भी आप यही करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम रीड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जब आप उसके साथ प्रूफ अटैच कर दें कि हाँ प्रोटियस में मैंने इसको सिमुलेट किया एंड इट वर्क्स एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड, तो फिर उसको मार्क करना इजी होता है। तो ये जो प्रोग्राम में मैंने मॉडिफिकेशन तजवीज़ किए हैं इसका भी पता चल जाएगा अगर प्रोटियस हमें इसको सिमुलेट करने देता है तो। अच्छा दूसरी बात, माइक्रोचिप में इसको कंपाइल करना है। उसकी वजह ये कि प्रोटियस ज़रूरी नहीं है कि इसको कंपाइल करें। मैंने अभी ट्राई नहीं किया, लेकिन ये जो जितनी लाइब्रेरीज हैं ये आई डोंट थिंक कि प्रोटियस कैन सपोर्ट। तो माइक्रोचिप में कोड को बिल्ड करके उसका हेक्स ना उधर प्रोटियस को पकड़ाना है। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ अगर प्रोटियस काम करता है सही।
तो ये आधा घंटा जो रहता है ये इसी पे गुजार लेते हैं, ठीक है। ओके एक्सक्यूज मी सर। जी। सर वो जो असाइनमेंट आपने एडिट किया ना सर क्लासरूम में, हाँ जी। उधर यूनिवर्सिटी में तो सर जो असाइनमेंट दिया था ना सर, ये इससे थोड़ा लेंथी हो गया है ना सर। बस खैर है ना, कोई मसला है? यस सर, अगर इसके ड्यू डेट थोड़ी डिले कर दे सर तो इजी हो जाएगा हमारे नहीं लिए। है, वो आज ड्यू था ना। यस सर, आज ही ड्यू है सर। आधा आधा कर लिया है हमने, जितना उधर बताया था ना सर उधर यूनिवर्सिटी में। यार ये सारी चीजें गूगल पे पड़ी हुई हैं, आई डोंट नो आप लोगों को इस पे इतना टाइम। यस सर, यस सर, खाली कॉपी पेस्ट तो नहीं करना है ना सर, थोड़ा कॉपी देखना भी पेस्ट तो है नहीं ना सर। करना, रिफ्रेश भी करना है। चले मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ यस सर, दो दो दिन। यस सर, बड़ी मेहरबानी होगी सर। उधर आपने मिनी बोला था ना सर, मिनी आर्डिनो, उस पे 3 घंटे लगा कर सर अभी क्लासरूम में वो मिनी नैनो कर दिया आर्डिनो सर पे आप। 3 घंटे आपने लगाए हैं यार, खुदा तो हो रहा है यार। सच में सर, पूरा आर्डिनो उससे वो पढ़ना था ना सर। मा कम ओवर खड़े मा नैनो ओवर खड़े। तासो खैर दे सर, नैनो भी कर लेंगे लेकिन सर थोड़ा डिले कर दे सर तो अच्छा होगा सर। अच्छा ठीक है ठीक है, अदरवाइज आई कैन एक्सेप्ट मिनी एज वेल अगर मैंने क्लास में कहा है। यस सर, वो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है सर। ओके, थैंक यू सर। ओके। अच्छा प्रोटियस को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन करना है। हाँ उसे हो जोड़ा गैर और वरना कर। गुड। So let me do this quickly. So कोई इजी से एक प्रोग्राम उठाएं, RGB कॉमन के तोड़, चैनल रिले, टेम्परेचर, मोटर एग्जाम्पल। बस एलईडीज पर क्यों तो तैयार मिलोश। लाइन फॉलोअर भी है इसमें, ये आपका फेवरेट। ओके बजर ह्यूमिडिटी जबा सारी हम चूचत। अच्छा विजुअल स्टूडियो में नहीं होना चाहिए ना, विजुअल डिज़ाइनर में। दिस इज़ अनदर वे टू राइट प्रोग्राम इन प्रोटियस, लेकिन आप शायद अभी इधर पहुंचे नहीं हैं, तो लेट मी ओपन अनदर वन। ठीक है। इसमें हमारे पास ये एक शील्ड है। अच्छा इसका भी विजुअल डिज़ाइनर, ये सीन क्या है? मोटर अर्डुइनो मोटर चैनल रिले। हाँ इसके साथ सोर्स कोड है। सबसे पहले तो मैं ये कोड उधर उठा के डालता हूँ कि कंपाइल होता है कि नहीं। आई डोंट थिंक, उसकी वजह ये है कि इसके पास AVR लाइब्रेरीज नहीं होंगी, ये सपोर्ट नहीं करता होगा। ओके नहीं कर रहा तो अच्छा कर रहे हैं तो एरर पर क्यों दिया? चले हो गए जी। Now we come to here and what we are doing is पहले तो सॉरी इसको चलें खैर, अब तो मैं वैसे भी चेंज कर चुका हूँ। सो हमारा ये वाली जो LED है, इट्स कनेक्टेड टू पिन नंबर 13 IO 13
and IO13, if you see here, is pin B, port B, pin 5. तो जो हम लेक्चर में कर रहे हैं अब वो भी यही है, ठीक है। तो एलईडी तो ऑलरेडी हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है कि हमें ये सर्किट चाहिए, ठीक है। तो ये सर्किट, ये पुश बटन जो है, पुश बटन, इट इज़ कनेक्टेड टू रीसेट, और रीसेट हमारा है किस पिन पे? रीसेट तो मुझे लगता है अलग से पेन है कोई। खैर, अलाउ मी टू मेक इट पोर्ट बी पिन नंबर कौन सा 7। तो पोर्ट बी पिन नंबर 7 में इधर एक जंपर दे देता हूँ, कॉपी पेस्ट, और इसको कह देता हूँ, लेट्स नेम इट, अपने ही नाम दे देते हैं, IO पोर्ट B7, ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ कि भाई पोर्ट B7 के साथ कनेक्ट हो जाओ। तो अब हमारा कम से कम सर्किट कंप्लीट है। दिस इज, अगर आप जंपर नहीं यूज़ करते तो लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था कि यहाँ से एक वायर सिर्फ इधर ले आए, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये भी ठीक है। अब इस सर्किट को इसके साथ टैली करें जी, इसके साथ। तो यू शुड, अच्छा नॉट मैंने नहीं लगाया, तो नॉट, चलिए हमारी लॉजिक इन्वर्ट होगी, ठीक है। हम इधर क्या कर रहे हैं, प्रेस्ड पे एलईडी ऑन है तो वो उधर ऑफ होगी, नॉट प्रेस्ड पे ऑन होगी। लेट्स सी इट, फिर इसको हल किया जा सकता है। ये हेक्स फाइल कहाँ से उठा रहे हैं? ये हेक्स फाइल उठा रहे हैं यहाँ से। ये कब का बिल्ड है? 12/06/2012। तो अगर आप कंफर्म नहीं है कि ये फ्रेशली है हमारे पास जनरेटेड, तो एक बार फिर बिल्ड करें, ठीक है। फर्मवेयर इज ऑलरेडी कंपाइल्ड, ये कहता है कि कंपाइल्ड है। अब इसको हम रन करते हैं, अगरचे बाकी बहुत ज़्यादा क्लटर्ड पड़ा हुआ है, बट आई डोंट नीड देम, आई डोंट नीड देम। सो उसको रिलेज को डिलीट कर दें। लेट्स से वी डोंट नीड देम राइट नाउ, सिर्फ हमें ये सर्किट चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने उसको अपने इस एग्जांपल के मुताबिक मॉडिफाई किया है। नाउ लेट्स रन इट। हाँ जी, जब बटन प्रेस नहीं है तो एलईडी क्या है? ऑन है, और जब बटन प्रेस करूंगा तो वो ऑफ है। इसको यहाँ से, ये पुश बटन है और आप चाहते हैं कि परमानेंटली बैठा रहे, तो फिर ये साइड पे एक एरो, इसको क्लिक करें, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये तो बटन पुश्ड नहीं है तो एलईडी ऑन है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करूं कि जब बटन प्रेस करूं तो एलईडी ऑन हो, क्या करूं मैं? सर नट लगाना पड़ेगा ना सर, नट के नॉट लगाएं, या कोड में क्या कर सकता हूं? कोड में, कोड में सर। हाँ जी, मत, और अगर सुपर हिंट और की नॉट गेट, ये तो एक तरीका है ना हार्डवेयर में। कोड में क्या करूं? सर सर ट्रू ये वाले को else फॉल्स का कर दे word और है। फॉल्स वाले को ट्रू कर दे सर। जबरदस्त। ये यहाँ से उठा के नीचे लें, और ये यहाँ से उठा के ऊपर ले जाए, और हाँ ठीक थे। नाउ सेव इट एंड बिल्ड इट अगेन। ठीक है, और नाउ इफ यू रन इट, तो now when the button has not been pressed, the LED is off. When I press it, the LED is on. किसको समझ नहीं आई जी? ये हमने किस लिए किया? फरहान कहता है ये हमने किस लिए, क्या हमने किस लिए किया? ये एक्सचेंज के, ये सिमुलेट? यस सर, हमने क्या रिजल्ट ऑब्टेन करना है? रिजल्ट हमने पहले तो प्रोटियस में इस प्रोग्राम को वेरीफाई करना है। देखिए मैंने लेक्चर में जो चीज़ें थी, थोड़ा सा मैंने कोड को
चेंज किया और आपको चेंज नजर आ गया होगा, मैंने एक्सक्लेमेशन वो नॉट हटा दिया। देखें इधर इधर भी नॉट था ना, आपको नजर आ रहा है ना, मैंने उस पर स्लैश लगाया हुआ है, कट किया हुआ है, ठीक है। ये किसी दूसरे प्रोफेसर के नोट्स हैं, मैंने उसको बस सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक सेट करने के लिए मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है सर। अब कंफर्म तो करना है ना कि भाई यस इट वर्क्स। तो वर्क करने के लिए द बेस्ट वे टू कंफर्म इज थ्रू प्रोटियस। और प्रोटियस में भी किसी को मसला हो तो प्लीज पूछें। मुझे लगता है अगर आपने मल्टीसिम में काम किया तो ये जो वायर वायर कनेक्ट करना है और ये, अच्छा बाज लोग कह रहे हैं कि भाई अगर हम कोई नई एलईडी ऐड करना चाहें तो देखें एलईडीज ये भी पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से रोटेट करके अपनी मर्जी की पोजीशन में ले आए एंड यू जस्ट पुट इट एनीवेयर यू वांट। और अगर आपको इसके अलावा कुछ चाहिए, लेट्स से आपको नॉट गेट चाहिए, तो नॉट गेट की आईसी का क्या नाम है? हेलो 4704 4704, ये आपके दादी माँ का नंबर